Has the Lord healed you? Yes. Yes. Come on, share it. Sister Pushpa. Sister. Just sit along with us and listen to this testimony. Just sit. If you are not getting late, you can sit down and listen. Praise God. Praise God. Yeah. Tell us. What's your name? From where did you come? Thank you, Jesus. Praise you, Jesus. My name is Loudly, loudly, please. Loudly. Hey, come on, increase the volume, please. First time you're holding the mic. First time you also got healed. I'm Ivona. I'm from Goa. From 7 years of age. Uh, at the age of 7 years onwards, I means once I fell down, and then from that time onwards, I'm falling sick, and From the then age of 7. from the age of 7. In short, I will tell. If otherwise, it will take 1 or 2 hours like that. Okay. So, and then after that, started. My parents were taking me to many doctors. Then it was means I was not means they were doctors were not able to rule out what problem I was having, and then since medically there was no cure. Because there was no diagnosis. Yes, then they took me to some retreat center, and there also like I was not healed. So you are manifesting like this. uh, that time I was 7 years, so I can't remember. But that fear, suddenly I used to fall, and sudden like I used to behave weird way like means Weird face. weird way, yeah. And parents also were they were not understanding what is happening to me. Then retreats they tried, then there nothing, no changes. Then they even took me to that witchcrafts and all. Baba. That yeah, they were not having that knowledge, so someone told them, so they took me there. Then they gave me something to eat, some rice and all, but there nothing happened. Then some they do that thing. Muslim Baba. Yeah, and they give tavis there also, they took me, and there was nothing happened. But the condition, Nothing happened means things nothing, began to become worse. things, yeah, it It had, is not that nothing happened. yes, it Things became began to be worse. worse. Yeah. Then actually they were not What age were you when they took you in such places? 7, 8 years, because Oh, right in someone the told beginning. them. Right Yes, in the beginning. someone told them, Okay, and that time I okay, was small, so okay, I was okay, okay. so. And that after that, every time sick, I was always used to be sick. Then after like then hospitalized doctor, that was Your normal. life. Yeah, that was my life. Now, how old So are you? now I'm 31 years old. 31 years old. That means around 24 years. Yes, Okay. but I got used to that body because everyone says sick, so I am sick. So you Then began to live with it with it, and you began to adjust your life with it. yes, But every time you would have palpitation, yes, you and sudden sickness, then hospitalized doctor. That was continuous, but that is everyone said like I'm sick only, no, so everyone knows sick. so So I so they were accepted they, that. they accepted you as Yes, a sick child. and full of fear. I was like, even if pin drops, I was full of fear. Then sometimes hallucinations also, and means I, and school also I used to means 3 months, 2 months I was not going only because of this. But study wise I was very good, but only this thing. Suddenly I used to fall sick. Then 2000 means with this was my life. But then 2017 I got married, and then after that I suffered 2 miscarriages. Then my condition got more worst. Then I started adding symptoms. Like before it was like fear and that palpitations and all, and suddenly behavior. But after that my means face also was changing suddenly. Then hand was getting twisted, and they were taking me to prayer service and all.
But there I was not closing my eyes. But if I close my eyes, then something was happening to me. So I used to open my eyes and I used to avoid prayer service, you know. And in the church, I didn't wanted to go only because whenever I go, something used to happen and I used to feel like to run. And I was telling my parents also, but they were like, how it is. They also don't know how it is happening. Then also many times I had gone to psych. They told me maybe mental problem. Took me to psychiatrist, the neurologist, many doctors. Then they gave me various tablets, and I was getting reactions, side effects of that. So it was not helpful. And many MRI, CT scanning, then every full body checking, everything was done. In the heart was like echocardiogram, everything was done. Only heart used to raise like before it was 120, then 130, then it started increasing, it went to 185 and all like that. And How much is normal? normally 60 to 100, and 60? within 60 to 100 is normal heartbeat. And if it is 110 or 120, doctor says like heart can get fail also. So And you went up to 185. 185, even maybe more than that, when the doctors checked this thing. But they say heart is normal, but I was having abnormal heartbeats and also skipping of heartbeats. So, and they say it is a risk to life, but they cannot rule out the reason why it is happening. Then again I went to some other this thing, some I don't know which, someone they took me to some brother, and they said someone is holding your heart. So I got more scared. And Who said this? this one brother told me, means A Christian brother. Christian or I don't know, maybe Hindu, but he was doing some retreats in Margao somewhere took Retreats me. in Jesus. Some in the hall, in hall. Are hall, Yes. but he was preaching Jesus. Jesus, or? Jesus. So that brother said there is somebody Something holding my heart. heart. So Okay. I got more scared and I fall more sick. Then for retreat, he told to come within 3 months. I will be clean, he said. Then he told me that someone has done this witchcraft in your house. And then I started screaming at his retreat center. So someone has done witchcraft. I got more scared. Then I was meditating on that, seek and all. Then Your condition became even worse now. yes, it was affecting me mentally. And then my parent, then we started rolling out. And what is the problem? That my mother, when she was expecting me. That time she also suffered because my home condition was not so good. So she The had effect gone of for the mother's yes, fear that passed on to the child. yes, sometimes she had gone to commit suicide, something like that. So maybe that anxiety had gone. So we started ruling out why I'm falling sick. Nobody knew why I'm falling sick. But then I was like, means I used to talk to God, and we are not told to how to pray. Means I used to say, Lord, will be what I have done. I was just 7 years of age. So with all that rejections and all, like I used to means break down just small what I have done for this. So I used to question God, what kind of a life I'm living. Everyone is going. See now, means everyone is moving out, and I am only like school, home, and then after Hospital. hospitals. This was my life. After marriage was like once a week, thrice, 3 times I used to go admit drips. They were doctors also were like they were not finding any disease. Why you are coming here? All staff also they recognize me every week. Then they got fed up of me. Say, don't come here. There will be no treatment. You go to psychiatrist. They said you go to more this because and they used to give me high dose and all. And I was not Okay, even getting let's sleep. let's fast forward now. Okay, and then means When did you just start taking a U-turn? uh, then that retreats and all I used to go. And but When you went there, the message was given yeah, that caused you more into yes, fear. yes. And Then when did the U-turn take place? when this thing this was I actually left hope, because if this is life, then I don't want after my delivery and all. Oh, this is after that. Then I just happened to see on Facebook that I heard about you, brother, and then this was my last this the hope, like as if. Then I checked JCLM. Then I started going on the teaching. So nobody told you. You found it on the Facebook. uh,
I know my aunt told me. She's But from. nobody sent you a link. No, no, no. You I was typing your name and to okay, find out GCLM. I was not knowing that your. okay. So that through Facebook I came to know. And okay. Before that I was attending some other online retreats. There also I used to scream and all. Then my parents like they said, "What people will say? What you are screaming? What is this? What kind of this thing you are doing?" So that's why I stopped that also. Now what is the option for me? Medicines also are not working. This also is not working. So I said, then when I started listening to your first teaching, Papa, like sower and the seed, that time means my mind. I just got carried away with the teaching continuously. Like I started listening. Then Sister Jocelyn also, the way she explained. Then I send a message to your helpline number. There I found two this thing, brother. What did they send me some scriptures and all how to pray. So but I was now this is like I was in that much depression. No, I was not that much understanding. But Brother Raymond, he helped me in that how to pray and all to preach. But still I was not coming out of it, and I used to disturb them, irritated them many times because You would call at any odd hour. yes, because I was, now I found this, now I didn't know how to apply what. So but still they used to help me so much. I just And for you, and night then 1 o'clock, 2 o'clock, or then 3 o'clock is normal time. yes, because I was not getting sleep, no. And then I said like last, now I will go to Papa only because you had such problem then. So I somehow tried to get your number and I texted you and I said I want to talk to you anyhow because I don't understand only what is happening. So that's why I messaged you, and then the way you was interacting with me, I means I felt like okay, something can means now at least I will means that hope was there. Then But I never prayed over you. no, you never. You just you told me to go to the teachings, that thermometer, thermostat means so that I used to renew my mind with that. Uh, Before, like everyone say, you renew my mind, renew mind, but I was not knowing how to renew mind. Faith, belief, I was not knowing what is that, how to add. Then after these teachings, Sister Jocelyn's and yours, then I started practicing that, and now. मैं आपको सॉरी, मैं आपके बारे में भूल गया. मैं समझाता हूँ. एक मिनट. अरे यार, नहीं लास्ट में नहीं, अभी समझाता हूँ. सॉरी, क्षमा चाहता हूँ. ये बिटिया 7 साल की थी तब ये गिर गई और वहां से शुरुआत हो गई इसकी कहानी, दर्द की कहानी. हर महीना बीमार होती थी, डॉक्टर के पास जाती थी, डॉक्टर को कुछ समस्या नहीं मिलता था, दवाई पे दवाई खाती थी. डॉक्टर लोग ने भी हाथ ऊपर कर दिया. 8 साल की उम्र में माता पिता अपने बच्चे को बचाने के लिए रिट्रीट सेंटर ले गए. वहां पर भी प्रार्थना बहुत किया, लेकिन बिटिया का चंगाई नहीं हुई. किसी ने कहा कोई बाबा है, कुछ खाने देगा, बेटी ठीक हो जाएगी. वो भी कोशिश किया, लेकिन अब इनकी परिस्थिति और बिगड़ गई. किसी ने कहा कोई मुस्लिम बाबा है, तावीज देगा, उससे ठीक होएगा. अब इनकी स्थिति ऐसी भयंकर हो गई कि ये हर हफ्ता बीमार. अस्पताल में इलाज करते करते अस्पताल वाले भी हैरान हो गए. साइकेट्रिस्ट के पास गई, वो लोग भी हैरान हो गए. दवाई पे दवाई खाते खाते आज वो 31 साल की हो गई है. जब भी चर्च जाएगी चिल्लाएगी, टीवी पे आराधना सुनेगी चिल्लाएगी, तो ये चर्च भी नहीं आ सकती है. तो जब उन्होंने मेरे साथ बात करना चालू किया, हमने उससे प्रार्थना नहीं किया, लेकिन हमने उससे कहा वचन सुनेगी बिटिया तो चंगी हो जाएगी. इसको नींद नहीं आता है, महीना भर नींद नहीं आता है. तो आप सोचिए, पूरा रात इंतजार करती है कब सूरज निकलेगा. और इनको कुछ फर्क नहीं गिरता है. 1 बजे, 2 बजे, 3 बजे, 4 बजे इनके मन में आता है
जो प्रार्थना करने वाला वो भी जगेला है। तो जब तक मैं फोन नहीं उठाऊंगा तब तक ये छोड़ेगी भी नहीं। तो मैं इससे बोलने लगा, देख बिटिया, तुझे ठीक होना है, मुक्ति मैं नहीं दे सकता। ही सेंट हिज वर्ड एंड हील्ड माय डिजीज। प्रभु ने अपने शब्द को हमको दिया है, वही शब्द तुमको चंगाई दे सकता है। तुम्हारा विश्वास तुझे चंगा करेगा। तो तुमको वचन तो सुनना पड़ेगा। वचन सुनने के बाद हम तुम्हारी सहायता करने तैयार हैं। जब तक तुम वचन नहीं सुनेंगे हम तुम्हारे लिए प्रार्थना नहीं करेंगे। तो इनको टीचिंग दी, थर्मामीटर और थर्मोस्टेट। बिटिया ने ठीक है बोला और शुरुआत किया सुनने के लिए। सुनते सुनते कितने समय तक सुना? This 1 month I have listened, and एक then महीना एक ही टीचिंग सुना। कुछ 6 या 7 पार्ट है, उसी को रोज सुनती थी, सुनती थी, सुनती थी, लेकिन समस्या गई नहीं। I used to, whenever I pray, wasn't able to connect to God because I used to manifest. और And प्रार्थना then, करना चालू किया तो शुरुआत होता था इसका चिल्लम चिल्ली। घर वाले भी बोलते थे, बाबा तू मत कुछ कर, तू ऐसी ही ठीक है, नहीं तो तू ऐसी चिल्लाती है, बाजू वाला क्या सोचेगा। yesterday also, you all have seen what I didn't wanted to stay for here also for adoration because अब I know इसको what is इसको happening. मालूम है कि जब भी गीत चालू होता है इसका चिल्लम चिल्ली चालू होता है। Then I told Papa also, Papa something. Then something happening to me. Then he said he is there. So I stayed with that, and then तो कल वो बोल रही थी मैं यहाँ से जा रही हूँ, मुझे आराधना में नहीं भाग लेना है। तो मैंने बोला कोई बात नहीं, हम तुम्हारे मदद के लिए है, लेकिन तुमको जरूर रुकना है। And then today, first time like adoration, it's like, and even morning mass, first time I was able to attend, like without that fear was not there. And receive the Holy Communion also before the fear was there. And I was like, and I was fully into, in my mind, I have set that thermostat. I'm completely healed, I'm completely set free. No, it is written, it is finished on the cross. So I renewed my mind with that whatever means nothing will happen. And with that, I had come over here. And whatever teaching now, these 2 days which I have listened from Brother Jude, Sister Kiyomi, brother from you, actually I was feeling like God is talking to me only, and everything was relating to me. So I was actually God was talking to me with that. And Okay. today, तो ये 2 दिन से जब से इधर आई है, वचन को सुन रही है, जूड भाई बात कर रहा है, क्योमी बात कर रहा है, हम बात कर रहा है, उनको ऐसे लग रहा है प्रभु खुद उनसे बात कर रहा है और उनकी समस्या का दवाई दे रहा है। तो ये बार बार सुन रही है और इसमें आया विश्वास। and today I'm completely changed, set free, no fear, and I just want to thank and praise God. So there were no symptoms. No symptoms, no, nothing like that. I was normally used to manifest, so this is the first time. Sorry. This is the first time I attended adoration without screaming or making weird faces. Yeah, let me. First time. And actually, I was not supposed to come here. It was Papa who, and I even texted him that I'm not coming. And being a so means I was like he thought इनको of, ट्रेन में मेरे को घुसाना पड़ा। and he told because of him I'm here, and I just thank So can you, I get a Papa. good hug from you? Thank you, Papa, so much. Can I get a good hug from you? Praise God. I just want to thank and praise God for setting जब me. जब कोई ऐसा फंसता ना, हमको तो मालूम है, हमने तो मार खाया है। जैसे ये चिल्लाती है हम भी चिल्ला रहे थे, तो हमको अनुभव है ये जिंदगी कितनी परेशानी की जिंदगी है। हमको बाथरूम में दरवाजा बंद करने के लिए भी डर लगता था। आप सोचिए एक आदमी 33 साल का दरवाजा खुला रख के स्नान कर रहा है। लॉक करने का तो बात अलग है, ढकने के लिए भी डरता था।
और यही प्रभु यीशु ने हमको मुक्ति दी। तो जब हम दूसरों को देखते हैं ना, हमको हमारे दिन याद आते हैं, और जो कुछ भी हुआ, अगर नहीं आएगी तो घर से उठा के लाऊंगा। And Papa, like now 28th of June, I got that panic attack again, panic anxiety attack, and I was admitted. After that, I actually work in judiciary. So after that, I did not went out. I was just stuck on bed. Means June? This June 20th, I got again panic So attack. from June 28 to To August 1, yes, means I was जब मैंने तुमको interacting with बुलाया, yes, I was interacting with you and used to say no, angels are surrounded with you, and used to send me teaching so that I used to plug in, I used to sleep, but still symptoms were there many days. Then last 3 days. see, one thing is there. देखो देखो देखो, Yes, हम तुमको टीचिंग तो भेजता है, yes, फिर टीचिंग से होता नहीं है, लेकिन टीचिंग No, से no, नहीं, सुनो सुनो, टीचिंग से क्या होता है मन the में, mind get rid. इधर का हॉस्पिटल का एड्रेस के लिए तैयार होता है, नहीं तो पहले से भागता है ना। And तो, that तो तुम्हारी तैयारी तो घर में हुई, yes, इधर खाली हलाल करके, and अरे सुन तो सही, yes, Papa. But I got sleep after listening to teachers teaching for 1 month. After 1 month, 3 days, I got ठीक है रे बाबा, वो तुमको जरा टेम्पररी दिया है, परमानेंट करने के लिए अस्पताल आना जरूरी है ना, yes. नहीं तो हमारा काम किधर होएगा, And अरे हमको काम कैसा and मिलेगा। you said that actually, see, I did not from this room to that room also has to get scared to go, because what if I fall? What if I fall? And to go to the nearby shop also I used to take my brother or anyone, because I used to feel giddy. If I walk, I giddy. If I smell, I used to feel giddy. Anything, even food smell, I used to feel giddy. Anything means the symptoms which are unknowingly symptom, whole body तो like खाना that. देखेगा तो चक्कर आके गिरता है, Any कोई even बास आए तो smell, चक्कर आके गिरता है, चलता है तो any चक्कर this आके thing, गिरता है। all weird. So अभी गिरती है क्या? So it was like that life. I will not even means, and when even if I the before I used to cook, like I used to feel giddy every day. I used to hold, and when I used to leave, ओ जाने दे, अभी अभी क्या हुआ वो बोलना but है। now no, even I used to vomit and all whole symptoms. Something was there, but now I'm completely set free, Papa. Like अच्छा ये बता, after. आज हृदय कैसा चल रहा था? Mm, I that focus only was not there. I'm डब 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 nothing डब डब like डब that. डब डब, कुछ नहीं है। No, nothing like that, ए Papa. बाबा किधर गया डेंजिल? डेंजिल बिल बना रहा है, Before it was डेंजिल गया बिल बनाने के लिए। yes, actually I देख डॉक्टर को तो लाखों रुपए दिया ना, always maybe childhood onwards. तो हमने भी थोड़ा बिल बनाना है ना यार। जो भी आता है पहला बात अच्छा अच्छा करता है, बिल का नाम लेता है तो हंसता है। It is already paid. You only देखो सब लोग यही बोलता है और यही सच्चाई है, मुफ्त में मिला है, मुफ्त में बांटना है। Jesus. आप बताइए, आज इस बिटिया को 7 साल की उम्र से 31 साल की उम्र में मुक्ति मिली है, स्वर के राज में प्रवेश किया है। स्वर में क्या उतारेगा? अरे स्वर में क्या उतारेगा? प्रेज गॉड। लेकिन एक बात बताना चाहता हूं, जो मेरे को प्रभु ने कहा, जो गया है ना वो वापस आता है देखने के लिए घुसने मिलता है क्या, और वो देखता है कि घर पूरा क्लीन है लेकिन खाली है, लेकिन वो तो नहीं घुस सकता है, लेकिन घर खाली है। तो यीशु बोलता है वो जाके और 7 को पकड़ता है, और वो 7 और ये 8 मिलके घुसता है। अब उस व्यक्ति की स्थिति पहले से भी भयंकर होती है। तो इसका मतलब क्या है? अपने को अपना घर खाली रखना है कि भरना है? किधर से सोफा विफा लाके भरेगी? No, with the word of कठिया। God. No, with the word. I'm listening, Papa. With the बस
Continuously, रात हाँ दिन, बस now, रात दिन सुनने का yes. इतना भर देने का। बाद में हमारा जब डिलीवरी केस रहेगा ना, तुमको ही बुलाएगा, हमारे साथ काम करेगी, Yes, of course. हमारे टीम में काम करेगी। Yes, of course. देना ताली। Thank you, Jesus. इसके लिए मैं बोलता हूँ ना, इसके लिए मैं बोलता हूँ, ए डब्बा बाटली वालैया, डब्बा बाटली वालैया। अभी 1-2-3 महीना जाने दो, इसकी भी गवाही आएगी। जोगेश्वरी से टोली को लेके आ रही है, उधर प्रवचन किया है, और लोग बोलते आ जाओ पूरा फिनिशिंग के लिए इधर आ जाओ। एनएसटीएस से आप बाकी जो काम करने का हमने उधर कर दिया, फिनिशिंग इधर कर देंगे। Amen. काहे? Thank you, Jesus. Yes. हाँ Yes. तैयार है ना? Yeah. बस इसीलिए हमारे टीम में सब टूटे हुए ही आते हैं यार, और टूटे हुए आते हैं ना, उनको मालूम पड़ता है यार दूसरा भी टूटा हुआ है, उनका दिल में आता है दया। अब ये सिस्टर है ना पुष्पा, ये कौन सी उम्र से ये सिस्टर है ना नन, Okay. वो कौन से उम्र में मिशनरी थी मेरे को नहीं मालूम, लेकिन जो मिशनरी है ना, वो मिशन में जाने पर है ना, उनके दिल को ऐसा घिस घिस के ऐसा नरम बनाता है कि जब वो लोग किसी गरीब को देखते हैं ना, वो हो गया पानी में। मिशन पे जो जाता है, हम छत्तीसगढ़ आए, आप लोग के फादर लोग को देखा यार, पूरा घिस घिस के पूरा पानी हो गया है। मिशनरी के नन लोग, मिशनरी के फादर लोग, आप देखो गरीबों के साथ रहते हैं। तो मैंने फादर को कभी पूछा, फादर भूख लगेगा तो क्या करते हैं आप लोग? आसान है, जंगल में जाने का, खाना मिलता है। मैं बोला फादर क्या बात कर रहा है, हम जंगल में ही रहे हैं ना, हमको मालूम है खाना मिलता है। तो हम गए थे जंगल में प्रवचन करने, तो वहां के लोगों ने जंगल का खाना लाया, फल। हमने कभी जिंदगी में फल नहीं देखा है। बोलते जंगल में बहुत सारे फल है, लेकिन फल खाने के पहले देखना है, चिड़िया ने फल खाया तो हम लोग खाने का, चिड़िया ने उसको चोंचने लगा है, खाना नहीं, जहरीला है। चिड़िया को कैसे पता चलता है ये जहरीला है कि ये अच्छा फल है? इसी को बोलते हैं कुदरत का कार्य। प्रेज गॉड। Praise God. Thank you, Jesus. Thank you, Papa. आएगी छत्तीसगढ़, Chhattisgarh. इसको लेके आओ। Thank you, Jesus. आएगी, Yes. आएगी ना मिशन पे। Yes, Papa. एक गारंटी है, एक मिशन में आएगी ना, पूरा डर निकल जाएगा। Yeah. अभी तो डर गया है, Yes. अभी हथियार उठाना चालू करेगा। Thank you, Jesus. Okay. प्रभु का तलवार। Yes. छत्तीसगढ़ के वासियों, इस बिटिया को माइक लेके प्रवचन करते हुए तुम सुनेंगे Praise God. Thank you, Jesus. Thank you. दिवाली में। Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. I always wanted, means after coming in JCLM, love the way our sister Jocelyn, her testimony, your testimony. So when I heard that, my desire only changed. Like I am working in judiciary in the court, but after coming in JCLM, I felt like means what I am actually doing, and now see my health is condition is like that. If God gives me chance, I want to work for His kingdom. That desire was there. Means after listening to JCLM teaching, Papa, from you and Sister Jocelyn, I used to. गौरी तू जा रही है ना छत्तीसगढ़, बम्बई And वाली है then- ना, ये भी बम्बई वाली है। No, I'm from Goa. तो जोगेश्वरी में कैसी है? Judiciary means go. I work in यार court. मैं सोच रही है जोगेश्वरी की लड़की है। No, I work in court. तेरे को नहीं लग रहा तो ये जोगेश्वरी जोगेश्वरी कर रही है? So अरे गोवा वाली है ना, कोई बात नहीं, अपना गोवा में तो बहुत टीम वाले हैं। yes.
और रेमन भाई है ना, उसको बोलेगा जरा एक्स्ट्रा मार देना ट्रेनिंग। he was like in contact, but I only irritated so much. But कोई बात नहीं, वो इरिटेट नहीं होगा, वापस नहीं, चल। he is very patient, means, and he loves पुलिस me इंस्पेक्टर also. है, Yes, कभी he देखा है पुलिस इंस्पेक्टर प्रेम से भरा हुआ? वो भी हेल्पलाइन में बहुत बड़ा बड़ा कार्य करता है। yes ये जो he बात कर रही है ना, he वो trained बड़ा me. पुलिस स्टेशन का बड़ा ऑफिसर है, Yes, लेकिन गरीबों को ले जाके प्रवचन करता है। मैं बोला he's ना, अपने टीम में तो सब सब प्रोफेशन वाले हैं, चोर भी है, जुगार खेलने वाले भी है, बाटली वाले खाली नहीं है, डब्बा बाटली वाले हैं, जो बोलो सब है। तो इलेक्ट्रिशियन भी है, इंजीनियर भी है, जो मांगता है सब है इधर। जनरेटर रिपेयरिंग वाला भी है। thank you Jesus. प्रेज गॉड। Praise ठीक God. है, Yes. थैंक यू वेरी मच। एक मिनट, एक प्रार्थना करना है तुम्हारे साथ, मेरे साथ बोलो, ए प्रभु यीशु, ये प्रभु यीशु, मेरे मन में एक ख्याल हमेशा होता है। मेरे मन में एक ख्याल हमेशा आता है। मेरी माँ मेरी माँ जब प्रेग्नेंट थी, जब प्रेग्नेंट थी, मैं उनके कोख में थी, मैं उनके कोख में थी, उस समय मैं नहीं जानती हूँ मैं नहीं जानती हूँ मेरे माँ को क्या क्या परेशानी हुई। मेरे माँ को क्या क्या परेशानी हुए। बोल रही थी आत्महत्या भी करना चाहा। आत्महत्या भी करना चाहती है। ए प्रभु यीशु, ये प्रभु यीशु, उनके मन में जो कुछ भी चल रहा था, उसका असर मुझ पर हुआ है। उसका असर मुझ पर हुआ है। प्रभु यीशु, आप कल, आज और हमेशा के लिए एक है। आप कल, आज और हमेशा के लिए एक है। आप मेरे भूतकाल में जा सकते हो। आप मेरे भूतकाल में जा सकते हो। मेरे भूतकाल में आज तक जो कुछ भी घटना हुई है, मेरे भूतकाल में जो कुछ भी घटनाएं हुई, आज तक मेरे भूतकाल में जो भी घटनाएं हुई है, जो आपके राज्य का नहीं है, जो आपके राज का नहीं है, वो इसी वक्त प्रभु यीशु के नाम से मैं बांध देती हूँ, और जड़ से उखड़ देती हूँ, और आदेश देती हूँ, जाकर समुद्र में गिर जा, वापस कभी नहीं लौट के आना। ये प्रभु यीशु, जो कुछ भी मैंने कहा है, मेरे में कोई शक नहीं है। मेरे हृदय से मैं विश्वास करती हूँ। जो कुछ भी मैंने कहा है, वैसा ही हुआ है। धन्यवाद देती हूँ। आज से मेरा भूतकाल की जिंदगी क्रूज पे ठोक दी गई है। ये नया जीवन, ये नया जिंदगी आज से इस वक्त से शुरुआत हुई है। मैं हूँ प्रभु यीशु का शरीर। शैतान, मैं तुझसे कह रही हूँ, प्रभु यीशु के नाम से तुझे मुझ पर, मेरे शरीर पर, मेरे जीवन पर, मेरे परिवार पर कोई अधिकार नहीं है, कोई जगह नहीं है। ये शरीर प्रभु यीशु ने अपने लहू से खरीदा है। मैं हूँ प्रभु यीशु की अमानत। कोई मुझे छू नहीं सकता। धन्यवाद प्रभु। आपके वचनों ने मुझे सत्य सिखाया, और ये सत्य मुझे मुक्ति दिया।
धन्यवाद, Thank you, Jesus. मैं मुक्त हो गई धन्यवाद. हूँ। धन्यवाद. I'm completely set. मैं मुक्त हो गई हूँ. आज से Thank you, Jesus. आज से आत्महत्या करने का आत्महत्या करने का वो आत्मा जड़ से उखड़ गया, जड़ से उखड़ गया है. कभी मुझे सताएगा कभी मुझे सताएगा नहीं. प्रभु यीशु के नाम से, प्रभु यीशु के नाम से. आमेन। Amen. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. कैसा लग रहा है? कितना हल्का लग रहा है? Very light. कल रात को सोई थी? Yes, I slept, Papa. Thermometer, thermostat. सुन सुन के सो गई। Yes. तो अभी किसी को जगाती नहीं है ना? No, no, Papa. That days are gone now. प्रेस गॉड। और किसी को गवाही देना है लास्ट वाला? क्या बात है। Praise the Lord. I had thyroid problem for 17 years. मुझे थायराइड का प्रॉब्लम था 17 साल से। So wherever I go, I used to take the tablet with me because if I wouldn't take the tablet, I feel tired, heart pain, and other symptoms of the thyroid. अगर मैं दवाई नहीं लेती हूँ तो मुझे दर्द होता है, थकावट होता है और Heart pain and some. हृदय का दर्द होता है। But fortunately, when I come here, I forgot to take the tablet. जब मैं इधर आ रही थी टैबलेट घर पे रह गया। Papa was, when I came here, Papa was preaching about faith. And Papa told us, we are healed by the wounds of Jesus. So you believed in heart and confess with your mouth. तो बाइबल में जो लिखा है कि हमको मुंह से बोलना है और हृदय से विश्वास करना है कि प्रभु यीशु के घावों से हम भले चंगे हो गए हैं, होने वाले ने हो गए हैं। So I believed in my heart and confessed with mouth. But there was fighting for 2 weeks. अच्छा लगा। I battled with. एक मिनट हमने ये सुनने के बाद हमने ये वचन बोलना शुरुआत किया। 2 हफ्ते के साथ हमारे साथ मारामारी हुई। फिर I battled with cough and I was very tired. I could not stand for eat at dining table. I was standing like this. But I never focused on that. I gave thanks to God. तो मैं कमजोर होती गई, लेकिन मैंने दवाई के बारे में सोचा नहीं, वचनों के बारे में सोचा। और हमारे इधर डाइनिंग टेबल पे बोलना है क्या? Like this, I मैं was. बोलेगा तो बहुत लोग बोलेगा यार ये लोग के डाइनिंग टेबल में टेबल है लेकिन कुर्सी नहीं है। तो सब खड़े रह के खाते हैं। और इसलिए खड़े रह के खाते हैं, सुनने वाले देखो, इसलिए खड़े रह के खाते हैं क्योंकि उधर बाद में है ना बहुत भीड़ लगती है। फिर ये लोग पिकनिक बनाते हैं, तो पिकनिक नहीं बनाने के लिए वो लोगों को खड़ा करता है। खड़ा करते तो पैर बोलता है जल्दी जल्दी खा ले, नहीं तो पैर दर्द करेगा, इसके लिए लोग भागते हैं। But after 2 weeks, there was no problem. And I had a lot of hair fallen problem because of thyroid. What? Hair fallen. Hair fall. Yeah. अच्छा, But now I don't have that problem also. तो अभी सब आपके पीछे आने वाला ही है 100%। This signifies I don't have thyroid problem now. Praise God। तो ये बोलती है हमारी जो थायराइड प्रॉब्लम की जो सिम्टम थी, बाल बहुत झड़ते थे। 2 हफ्ते के बाद कमजोरी गायब हो गई, हृदय में दर्द होना गायब हो गया, वीकनेस गायब हो गया। अंकल सुन रहा है क्या? अंकल सुन रहा है ना? बराबर सुनना। हाँ, वो बोल रही है दवाई नहीं लिया, वचन की गोली खाई, वो डोज तो नहीं लिया वचन का। I don't know. हाँ, अच्छा। there is any problem of taking overdose of the word of God? I heard. Taking overdose of the word of God, speaking more and more of the word, no side effect, good effect. वो बोल रही है अंकल वो बोल रही है वचन का ओवरडोज लिया, ले दवाई छोड़ दिया और पूरा ओवरडोज लेके टून हो गया दवाई से। 2 हफ्ते के बाद जो पहले का केमिकल था ना वो सब ढूस हो गया और इनका जो टेढ़ा हुआ शरीर था ना डाइनिंग टेबल पे, ले सीधा हो गया। जो थकावट था ना ऐसा सीधा हो गया।
बाल जो जा रहा था वो भी आ गए, आपके भी बाल आ जाएंगे। प्रेज गॉड। मैं क्यों बोल रहा हूं मन में, यहां से जाने के बाद आपको बदल के ही जाना है। कितने लोग विश्वास करते हैं अंकल फाइटिंग करेगा? कितने लोग विश्वास करते हैं हमारा अंकल फाइटिंग करेगा? प्रेज गॉड। हमारा अंकल भी फाइटर है। प्रेज गॉड। I have other ये टेल अंकल सुन रहा है। I had migraine problem also from What problem? migraine हाँ हेडेक, मेरे को देख के for 17 years. हाँ बोल रहे हो यार। So You got migraine because of me. no, from 17 years. हाँ 17 ईयर, 17 साल से माइग्रेन का प्रॉब्लम था। So I used to sleep at many hours at home because अच्छा है, मेरे को भी सोने का रहेगा तो बोले मेरे को माइग्रेन है, सो सकता है। because my migraine was so severe. If there is any disturbance in sleep or diet, I used to get vomiting and I could not open my eyes for 2 hours. So तो पति को तो no problem because he नहीं knows. नहीं नहीं, ही नोस, इसके लिए बोलता है यार बाद में माइग्रेन में होने से जा, तू सो जा, मैं सब बर्तन बिर्तन सब मैं धोता हूँ, टेंशन नहीं, तू सो जा भाई, तू सो जा। Yeah, like that. अरे मेरे को मालूम है ना, हर एक के घर में पति वैसा ही है, वैसा ही है। बीवी से प्रेम करता है तो बोलते जा भाई बाबा तू सो जा। कभी कभी बीवी फायदा भी लेती है। But even after coming here, first time when I slept at 1 o'clock, next day I got headache and I vomited for 4 or 5 times. Sister Jocelyn came that day. She did not say, is it morning sickness? No, she told. No, the sister told, you vomited. She did not ask you. sister told some system is changing, but I want to fight back, so I continued to write till 1:30 every day. But now I don't have any migraine problem. आपने देखा ये सिस्टर का एक बात इंग्लिश वाले, डिसरिगार्डेड, ओवरहर्ड, इग्नोर्ड, पेड नो अटेंशन, आई डोंट केयर। मैं इनको इतने बार छेड़ रहा हूं, इनको कुछ असर ही नहीं हो रहा। Last week I had some. क्यों नहीं हो रहा मालूम है? इनको हिंदी नहीं समझ रहा है ना। अगर समझ में आता तो जरूर होता। नहीं नहीं बोलो बोलो। ए जोशुआ, हाँ। Last week I had some mind disturbance and I felt like homesick. So I thought I have to grow in faith and I started fasting. I had cold allergy, means if I drink cold water or cold drinks, I started cold and sneezing. But during fasting, I drank a lot of buttermilk, cold buttermilk. No cold, no sneezing, nothing. क्या इसका बिल कैसे मारेगा यार? इसका तो मल्टीपर्पज वाला है, माइग्रेन भी है, थायराइड भी है, सर्दी भी है। So I came here. That Sunil must have put medicine in the buttermilk. He gave me lot of buttermilk, but So now you are happy. yeah, so I came here to know the Jesus, but Jesus gave me full package of healing and peace of mind and joy. Thank you. Husband is watching. I don't. He's policeman, so he came late at night. Sorry. Police department. अरे बाप रे, पहला बोलने का था ना यार। You should have told me before, no यार। My whole family. जॉनसन की जगह, जॉनसन, यार तू फॉर्म भरता है तभी पूछता नहीं हस्बैंड क्या करता है? यार तू क्या कर रहा है यार? My brother also police department. Everyone is there. किधर यार? जॉनसन मेरे को कुछ हुआ ना, छोड़ेगा नहीं तेरे को। You should have told, no, my husband is a policeman, my brother is a policeman. I wouldn't have said in Hindi, no. Sister knows. अरे सिस्टर नो, सिस्टर ऑल्सो डिड नॉट से बाबा संभाल के बात करना, उसका पति भी पुलिस वाला है, भाई भी पुलिस वाला है।
Father died before 3 years. He also retired sub-inspector. यार एक बोला, दो बोला, अभी तीसरा भी बोला. No, they all are very kind. Ah. Like your papa only. They won't tell me anything, no? For my translation. भाई हमसे गलती हो गया. Thank you. हाँ? नहीं यार, बिल मांगे, पागल है क्या? दिमाग खराब हो गया बिल मांगने के लिए. कौन बोला ये जुड़ा है ना? इधर आप बिल मांग, इधर आ. यार मैं तो सोच रहा मैं कैसा बच जाऊं, ये बिल मांग रहा है. सिस्टर आप बताइए, पूरा दिन हम लोग बैठ के वचन सुनता है, रात को पवित्र आत्मा हमको कितना अच्छा एंटरटेनमेंट देता है, गवाहियों में, आनंद में, एक परिवार बना दिया है ना? है ना? यहाँ पर कोई देखता नहीं है तो कन्नड़ है, तमिल है, हिंदी बात करता है, अंग्रेजी बात करता है, कोंकणी बात करता है, क्या बात करता है, कौन से गांव से है, कुछ फर्क नहीं करता है. सब एक ही गांव से आए हैं, स्वर्ग के गांव से. आपने ये देखने के लिए कितना साल प्रार्थना किया सिस्टर? कितना साल? नहीं, ये जो देख रहा है पूरी जिंदगी प्रार्थना किया, यही मुझे देखना है. अब ये तो खाली झलक है, आगे वाले दिनों में भर भर के देखेंगे. थोड़ा 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 माफी चाहता हूँ हमारे भाई लोग में, ये लोग अभी भी है ना थोड़े ये, जब आनंद होता है ना तो ये लोगों को कंट्रोल नहीं होता है, मुंह से हालेलुया बोलने के बदले उंगली से करता है, तब वो सीटी में आवाज आता है. देखा मैं बोला ना, देखो, अरे भाई, अरे प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया. इसी दिन को देखने के लिए हम आनंद से दिन रात मेहनत करते हैं. और आप लोग भी मेहनत जरूर करते हैं. अभी रात को बैठ के नोट्स लिखेंगे, वचनों में जाएंगे. भाई तेरा क्या हुआ इधर? हाँ तू ही बुलाऊं क्या वापस? जो गया उसको बुलाऊं? क्या गवाही देता है? नहीं बुलाता है. मेरा भी फर्स्ट टाइम है इसलिए. मेरा भी फर्स्ट टाइम है. प्रेज द लॉर्ड. ए स्टिकर बिकर निकालना नहीं भाई, तुम्हारा फर्स्ट टाइम है इसके लिए तुम खुजा खुजा के वो स्टिकर नहीं निकालना. हाँ हाँ बिंदास ले लेना, 5 मिनट लेना. जोशुआ, हाँ जोशुआ, हाँ अगेन. हिंदी क्लास में मेरा बहुत हार्ट अटैक हो रहा था. हाँ बराबर है. हाँ पता नहीं क्या हुआ, एक बार बेटा तो फिर से आ जाएगा करके मैं वॉशरूम. तुम कभी आए इधर रिट्रीट में? कौन सा दिन आया? इट्स बीन अ वीक. बोलना वो लोग को, 1 हफ्ता पहले आया. एक हफ्ता पहले इधर आया था और तब से मुझे हार्ट अटैक्स और हेड एक्स, डिप्रेशन में भी हूँ था. I'm sorry. डिप्रेशन में था. मेरे को देख के कितना सर दर्द हुआ. नहीं हुआ, सच्ची? नहीं हुआ, रिलीफ मिल रहा था एक्चुअली. अच्छा. तो मैं मैंगलोर में स्टडी कर रहा था, बीबीए कर रहा था. मैंने ड्रॉप आउट करके मैं मैंगलोर आया मेरे रिलेटिव के घर पे. तो तभी मेरे अंकल और आंटी बहुत ही स्पिरिचुअल थे, तो उन्होंने मुझे वीडियोस दिखाया ब्रदर जॉनसन के. तो मैं वापस बोलना, एक बार बोलना है यार, एक बार बोल दे, एक बार बोल दे यार.
एक बार बोलना। अंकल और आंटी ने ब्रदर जॉनसन का वीडियो दिखाया। किसका? तो फिर मैं ये रिट्रीट और ये सबसे दूर ही रहता था। तो कुछ मोटिवेशन वीडियो सा लगा ब्रदर जॉनसन को, फिर इधर आया। आने के बाद तो फिर ज्यादा ही हो गया मेरा सर एक हेडेक। तो किसको देखो तो चिढ़ाता था, क्या लोग हैं, क्या करते हैं दिन भर करके। हम बीइंग ऑनेस्ट। हाँ, ऑनेस्टली बोलना जो बोलने का बोलना। तो फिर मैंने देखा कि अब सब लोग आके इधर कन्फेशन करते थे, मतलब जो हो रहा था स्क्रिप्चर। स्क्रिप्चर बोलते थे। तो गवाही मैंने देखा तो फिर लग रहा था कि नहीं यार झूठ बोल रहे हैं। ये एक लोग झूठ बोल सकते हैं, दो लोग, या तो सब लोग हैं, सब लोग तो सच्ची बोल रहे होंगे ना। तो फिर मैंने भी, मेरा भी हार्ट एक ये आदमी बोला तभी कैसे लगा? आई वॉज नॉट लिसनिंग टू हिम, आई वॉज इन द वॉशरूम दैट डे। लेकिन वॉशरूम तक आवाज जाता है, ये बाहर तक जाता है। तो अच्छा, आवाज सुन रहा था लेकिन सुनने का नहीं है। हाँ, हाँ, काइंड ऑफ। थैंक गॉड। तो आज तो बहुत ज्यादा ही हो रहा था, क्लास में बैठा था। अबे मैंने तो फिर तो मैंने देखा कि ब्रदर जॉनसन से मैंने जाके मिला और मैंने सच बोल दिया कि मेरे से नहीं हो रहा है, ऐसे ऐसे हो रहा है, चाहे तो मैं चेक भी कर लो। हम हाथ पैर ऐसे रख के इधर रखवाया, देखो कितना धड़क रहा है, पता नहीं ऐसे क्यों होता है, हर बार ऐसे होता है। आई एम ट्राइंग टू डू माई लेवल बट इट्स नॉट वर्किंग। तो ब्रदर ने बोला आओ मेरे साथ हिंदी क्लास में बैठो, मैं जाके बैठा। मैंने एक बार भी नहीं सुना ब्रदर क्या बोल रहे थे, मैं बुक लेके कुछ पढ़ रहा था। फिर लास्ट में ब्रदर, नहीं ब्रदर, क्लास इतना बोरिंग था क्या? नहीं 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 ब्रदर, माइंड सेट नहीं हो रहा था। हाँ, फिर तो फिर मैंने डिसाइड किया एटलीस्ट 1 मिनट 60 सेकंड्स के लिए मैं कंसंट्रेट करने की कोशिश करता हूँ। शुरू से ही सही, देर नहीं अंधेर नहीं, सॉरी क्या क्या बोलते क्या? हैं, देर है अंधेर नहीं। ये यार तू डायलॉग विलॉग मत मारना, सीधा बोल देना। हाँ, तो 1 सेकंड के लिए मैंने ट्राई किया, हुआ कितना? कंसंट्रेशन, एक मिनट के लिए? हाँ, हम्म। 1 मिनट के लिए मैंने ट्राई किया, हुआ कंसंट्रेशन मिल गया। तो फिर मैंने फिर से 5 मिनट के लिए किया। तो मैंने सोचा कि अभी यार स्क्रिप्चर बोलने का टाइम हुआ, मेरे स्क्रिप्चर बोलता ही रहा। आगे आजू बाजू में सब लोग चिल्ला रहे थे, गा रहे थे, एटलीस्ट दे वर एंजॉयिंग यू, बट मैं स्क्रिप्चर बोल ही रहा था। तो फिर एकदम मैंने नोटिस किया मेरा दर्द कम हो रहा था। और मैंने जॉनसन ब्रदर कैसे बोला कम हो रहा है कम हो रहा है, बट ही वाज स्टिल डूइंग हिज प्रीचिंग। तो फिर एट लास्ट क्लास कब जब खत्म हुआ तो सब गायब ही हो गया था नहीं, प्रीचिंग। क्लास खत्म होने के पहले मैंने तेरे को पूछा। क्या? हाँ बीच में पूछा था, तब मतलब इट वाज देयर, बट तुम आप फिर से क्वेश्चन करोगे करके मैंने कुछ ना, मैंने नहीं बोल दिया। तो लेकिन जब लेकिन तभी तुमने क्या बोला? गया? गया, तो वही तो विश्वास हो गया। हाँ हो गया फिर। तुमने जब बोला गया, उसके बाद गया ना, उसी को तो विश्वास बोलता है। क्या? अभी अभी इसको भी मैंने पैसे दे के गवाही देने बुलाया। इधर बाकी के लोग को भी पैसा देके गवाही दिया। सिस्टर आपको मालूम है, ये सोच रहा था, मैंने बोल रहा है, ये बोल रहा है, सबको पैसे देके गवाही देने के लिए बोलता है। नहीं ब्रदर, ट्रस्ट इश्यूज है मेरा थोड़ा, इसीलिए। तो अभी कैसा लग रहा है? अभी हम फीलिंग मस्त। अभी दर्द हो रहा है? नहीं नहीं हो रहा है, जरा हम दबा के हील्ड। देखना, जब थोड़ा सीना बिना दबा के देखना। बुलाओ नहीं। सर। क्या सर? सर दर्द कर रहा है? नहीं 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 दर्द कर रहे हैं यार, कुछ उन्होंने नहीं। बहुत दिन से जिम नहीं गए हैं। आप बताइए, आपने माइक को लिया, बोलते गए, डर किधर गया? डर गया। यही तो बात है। प्रेज द लॉर्ड। पहली बार मेरा स्टिकर भी फाड़ दिया है। नहीं कोई बात नहीं। अब कैसा लग रहा है? आई एम फीलिंग अभी रिलैक्स सबको नाउ। देख के बोल सकता है मैं, मेरी मुक्ति हुई है। मेरी मुक्ति हुई है। मसीहा ने यीशु मसीह ने मुझे मुक्त कर दिया है। यीशु मसीहा ने मुझे मुक्ति किया है। आज की रात की हमेशा। हमेशा। आई एम हील्ड फॉरएवर। तभी कल जाएगा ना? नहीं नहीं नहीं, हम स्टेइंग हियर टिल 16th, सॉरी 15th, सितंबर 15th। अरे यार, थैंक यू। थैंक यू।
नहीं, बहुत लोग को जैसे हीलिंग होता है ना, बाद में बोलते हैं हम जा रहे हैं। प्रेज गॉड। सुनील बोलेगा अभी से मैं खाना बनाने का 12 बजे का रखेगा। सुनील, खाना रेडी है? गरम है? गरम है? हाँ गरम भी है, नरम भी है। प्रेज गॉड। अब दोपहर का खाना कैसा लगा? प्रेज गॉड। स्वर्गीय पिता, हम जैसे जैसे दिन जा रहा है अच्छा लग रहा है, आनंद भी लग रहा है और थोड़ा दुख भी लग रहा है, क्योंकि खत्म होने वाले दिन भी नजीक नजीक आ रहे हैं। इतना आनंद से हम मिल गए हैं एक परिवार बनकर। 15 सितंबर को सब इस हेडक्वार्टर से अलग अलग दिशा में जाने वाले हैं। धन्यवाद देता हूं पवित्र आत्मा, आपने एक एक को चुन चुन के लाया है। एक भी डुप्लीकेट नहीं है, सब बिल्कुल अलग अलग है। और आपने हर एक को अपने महान कार्य के लिए बुलाया है। धन्यवाद देता हूं प्रभु, आपने जो भी बीज डाला है इन दिनों में वो सब के सब स्प्राउट भी हुए हैं, बढ़ भी गए हैं और वो पेड़ बनकर फल देने का समय भी आया है। विश्वास करता हूं प्रभु, यहां पर हमने जो कुछ भी पाया है, आपका प्रेम, आपका शब्द, आपका पवित्र आत्मा, इसी को लेकर हम हमारे घर जाएंगे, अपने परिवार में, अपने रिश्तेदारों में, सब जगह जाएंगे और इसी को जाकर सभी लोगों को यही प्रेम चखने देंगे। 24 साल पहले हमारा नया जन्म हुआ। हम जानते नहीं थे कि हमारी जिंदगी इतनी खूबसूरत हो जाएगी। जिस तरह आपने हमारे जीवन में कार्य किया है, विश्वास करते हैं प्रभु, एक एक के जीवन में आपका महान कार्य हो रहा है और हमको वहां से खबर भी मिलेगी कि यहां पर इस सेंटर में जो कार्य आपने शुरुआत किया है डिसाइपलशिप का, ये कोर्स हमेशा हमेशा होता ही रहेगा। और विश्वास करते हैं और अधिक लोग आएंगे सीखने के लिए और इनके साथ हम भी सीखेंगे। सब हम सीख रहे हैं क्योंकि पवित्र आत्मा आप ही इस कोर्स को चला रहे हैं। बहुत धन्यवाद देते हैं स्वर्गीय पिता, ये महान कार्य जो आपने शुरुआत किया है बड़े खूबसूरती से चल रहा है, बढ़ रहा है और सब कुछ उजाला ही उजाला हो गया है। बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं फादर थॉमस और सिस्टर पुष्पा के लिए, जिन्होंने कितने सारे सालों से हमारे लिए प्रार्थना किया था विश्वास से। उन दिनों में तो कुछ नहीं था, सिर्फ एक जमीन थी, लेकिन हिम्मत नहीं हारा। दोनों का रिटायरमेंट हुआ है। इस उम्र में लोग आराम चाहते हैं,
लेकिन ये दोनों सिपाही जब बाकी के लोग ओल्ड एज बोल के रिटायर होते हैं, इन्होंने अपनी नई मिशन चालू की कि हमको ऐसे सेंटर बनाना है जहां पे हम शिष्यों को तैयार करेंगे, क्योंकि इनके मिशन में इन्होंने सिर्फ नन्स और प्रीस्ट को तैयार किया है, लेकिन अब हम ले पीपल को, आम आदमी को तैयार करेंगे। हम धन्यवाद देते हैं इनके जो पर्पस है, इनको जो अच्छी तंदुरुस्ती जीवन दिया है और जो उन्होंने चालू किया है, हम उसी के साथ मिलकर साथ में कार्य कर रहे हैं। जैसे पॉल ने डाला बीज, अपोलोस आके डाला पानी, और कोई शीश आके और कुछ, लेकिन फसल हम सब मिलकर लेते हैं। धन्यवाद देते हैं इस महान कार्य के लिए, प्रभु यीशु के नाम से, आमीन। बहुत बहुत धन्यवाद।